Good evening, everyone. Let's get started. The first word is Catholic. Basically, it is adjective. It means belonging to or connected with a part of the Christian church that has the Pope as its leader. The second meaning is connected with all Christians or the whole church. And the third one is including many or most things. You can use this word with taste, with smell, and other things. It means diversified. It means extensive. The first contextual meaning is related to religion, but the second one is you can use this with the behaviors, with diversified things. The first sentence is, as a young person, he had more Catholic taste than he does now. It means diversified taste, widespread. And the second is, are they Catholic or Protestant? इसका क्या मतलब होता है? कैथलिक भी, ये भी क्रिश्चियंस की एक टाइप होती है. कैथलिक एक और तरह के क्रिश्चियंस होते हैं, प्रोटेस्टेंट जो होते हैं ये दूसरी टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं. दोनों की टाइप सेम ही है. उसके अलावा इसका सिनम्स है comprehensive, extensive, diversified, and antonyms are partial, narrow. The second word is cerebral. It is adjective. It means related to the brain. We have discussed the word intellectual, intelligent, analytical skills. Cerebral is also used in this context. The second is relating to the mind rather than feelings. Emotional attachment नहीं होती आपकी, आप understand कर रहे होते हैं चीजों को, cerebral thinking कर रहे होते हैं, mental approach आप use कर रहे होते हैं instead of using emotional attachment. Relating to the brain or the cerebrum. The fourth one is demanding or involving careful thinking and mental efforts rather than thinking. Sentences are, his poetry is very cerebral. The second sentence is, she makes cerebral films that deal with important social issues. It means instead of using emotional issues, they use special thinking, mental approach, or phrases are connecting words are, his poetry is very cerebral. Synonyms are intellectual, brainy, intelligent. Antonyms are illiterate and illogical. Let's write the today's paragraph. Forests are one of the main elements of our natural heritage. The decline of Europe forests over the last decade and a half has led to an increasing awareness and understanding of the serious imbalances. European countries are becoming increasingly concerned by major threats to European forests, threat which
noun which no frontier other than those of geography और क्लाइमेट। क्लाइमेट में हमारे पास क्या आ सकता है? एयर पोल्यूशन, सॉइल डिटोरिएशन, as a whole countries see forests as performing triple functions: biological, economic and recreational। आज का थोड़ा लंबा है लेकिन इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज। आप यहाँ पे लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। हमारे पास राइटिंग टास्क 2 में एक ऐसे है इंटरनेशनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज पे। आप उसका जो ओपनिंग फ्रेजेस हैं उनके साथ ये सेंटेंस लिख सकते हैं। विदाउट एनी, ये सर आपको लिखवाया होगा, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। ये फ्रेजेस सर आपको काफी एक लिस्ट दे देंगे। विदाउट एनी आउट ऑफ डाउट आपने ये ऐड किया। यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे मैंने लैंग्वेज का आपको एक लैंग्वेज की आपको एक एग्जांपल दी है, फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज। आपने यहाँ पे लैंग्वेज को यूज करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद है द डिक्लाइन of Europe's forests over the last decade and a half has led to an increasing awareness and understanding of the serious imbalances। आप इसको जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कोई ऐसे आपके पास आ जाता है, the decline of Europe's forests over the last decade and a half has led to an increasing awareness and understanding of the serious imbalances। यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन का डिस्कस कर रहे हो, आप वहां पे यहाँ पे प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका सॉल्यूशन दे दें, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में जाने से पहले जहाँ पे पार्ट 1 प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, वहां पे आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली जो लाइन है इसको भी हम ओपनिंग फ्रेज में यूज कर सकते हैं। European countries are becoming increasingly concerned by major threats to European forests, threat which know no frontiers other than those of geography। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज की बजाय अथॉरिटीज, गवर्निंग बॉडीज, उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अदर कंट्रीज की बात नहीं हो रही, आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। अथॉरिटीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न बाय मेजर थ्रेट्स। यहाँ पे क्लाइमेट का, ग्लोबल वार्मिंग का, इस तरह का कोई ऐसे राइटिंग टास्क 2 में आपके पास आ जाता है, आप वहां पे ये लाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है आपको राइटिंग के जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है ये भी सर आपको समझा देंगे। जैसे एयर पोल्यूशन है, सॉइल डिटोरिएशन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जियोग्राफी का बता दिया, क्लाइमेट जैसे इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा किसी चीज के बेनिफिट्स आपने बताने हों, ये भी एक सेंटेंस का आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस में आप इसको कॉलन, सेमी कॉलन का यूजेज आप नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये यूज करना आना चाहिए। ये वाला एज अ होल कंट्री सी फॉरेस्ट एज परफॉर्मिंग ट्रिपल फंक्शंस। आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर लैंग्वेज का कहा था, लैंग्वेज भी बेसिकली हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहाँ पे भी डिफरेंट कंट्रीज का यूज करें। आप ये कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो हमारे कल्चरल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे इंसेस्टर्स के साथ हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप वो
ट्रिपल फंक्शंस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप डबल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना पसंद करें, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप इनको यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बाद में रिवाइज करवाती हूँ। आज का फ्रेजल वर्ब जो हम डिस्कस करेंगे वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? ये फ्रेजल वर्ब हम लोग 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करना किसी को, किसी चीज का जैसे लूज इंटरेस्ट, इसके अलावा किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना, मीटिंग जैसे कैंसिल करते हैं। 3 डिफरेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं? डोंट पुट मी ऑफ means don't distract me, don't disturb me, इस तरह don't put me off, I am trying to concentrate। इस तरह आप इसका बना सकते हैं। इसका इनफॉर्मल भी यूज है, लेकिन ये मैं आपको फॉर्मल यूज बता रही हूँ। डिस्ट्रैक्ट समवन, डोंट पुट मी ऑफ, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसका जो सेकंड था लूज इंटरेस्ट, इसके लिए कॉज समवन टू लूज इंटरेस्ट या एंथुसियाज्म, आपका वो लेवल नहीं रहता, आप उतने एक्साइटेड नहीं होते किसी काम को करने के लिए। शी वांटेड to be a doctor but the thoughts, or you can say but the thought of night shifts put her off। it means lose interest, डॉक्टर बनना तो वो चाह रही है लेकिन नाइट शिफ्ट की वजह से उसका वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। इस तरह पुट ऑफ का आप यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है आज का ऑन द बॉल। इट मींस अलर्ट टू न्यू आइडिया। मेथड, methods or trends। ये आप कैसे यूज कर सकते हैं ऑन द बॉल? ऑन द बॉल मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, ये आपने सिर्फ स्पीकिंग में यूज करना है, राइटिंग में आपने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ऑन द बॉल इट मींस आई लाइक हैंगिंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है विजिट करना, बाहर घूमना फिरना। आई लाइक हैंगिंग आउट विद यंग पीपल और यंगर पीपल। इसका मतलब होता है EM डैशेस। इट कीप्स मी ऑन द बॉल। इससे आपको न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं, इसलिए मुझे पसंद है आई लाइक हैंगिंग आउट विद यंगर पीपल। ये आप क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं। अगर आपसे स्पीकिंग का क्वेश्चन होता है आप वहां पे यूज कर सकते हैं। आप किस तरह की पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, आप वहां पे ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पहले हम कल का रिवाइज कर देते हैं। कल हमने डिस्कस किया स्मेल का, ये आपने कैसे यूज करना है। इसको आप डिफरेंट कल्चर्स के लिए वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम एंड हैबिट्स, एटीट्यूड्स, इस तरह का कोई आपसे टास्क 2 में कोई क्वेश्चन होता है आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। स्मेल इज नॉट सिंपली अ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिनोमिना। स्मेल ये इनक्लोजिंग डिटेल है हमारे पास। स्मेल इज कल्चर, ये इनक्लोजिंग डिटेल है। हमारे पास सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 चीजें होती हैं, या आप इनक्लोजिंग डिटेल दे दें, एंडिंग डिटेल दे दें, या उसके स्टार्ट पे उसकी फ्रेजेस बता दें। क्या कह रही हैं आप? मैम मैं पूछ रही थी कि आप ये ऐसे ही पैराग्राफ लिखवा रही हैं क्योंकि क्योंकि ना वर्ड्स नहीं शायद लिखे गए अंदर। नहीं, मैं आजकल वर्ड्स के वो नहीं करवा रही, वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के वो पैराग्राफ वो नहीं करवा रही। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए करवा रही हूँ जिनको राइटिंग में इशू आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे रखें। ये 1 से 2 वीक हम ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इन क्लोजिंग डिटेल्स ये सारी चीजें सर के साथ डिस्कशन के बाद फिर हम लोग इस पे मजीद जो है ना टास्क 2 लिखना शुरू करेंगे। इसलिए मैं वो नहीं करवा रही सेंटेंसेस जैसे पहले वो लिखवाती थी। ओके
ओडाज आर यूनिवर्सिटी विद कल्चरल वैल्यूज, यहाँ पे ये कॉलन यूज किया है, कॉलन के बाद आप लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस भी आप बता सकते हैं कल्चरल वैल्यूज कैसे है। यहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेन कर लिया कि स्माइल्स हो सकते हैं एक कल्चर में ऑफेंसिव हो लेकिन दूसरे में परफेक्टली एक्सेप्टेड हो, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट हमने क्या किया, देयरफॉर आवर सेंस ऑफ स्मेल किया, मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंटली आवर कॉमनली हेल्ड फीलिंग्स अबाउट स्माइल्स कैन हेल्प डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम अदर कल्चर्स। कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं, नॉर्म्स, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। टेक आफ्टर का हमने यूज किया, रिजेम्बलेंस होती है, क्यू कार्ड में आप यूज कर सकते हैं। आप किसी के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, आप सिंपली जैसे अदर पीपल यूज करते हैं आई डिसएग्री, आप सिंपली कह दें आई डोंट सी आई टू आई। या आप एग्री कर रहे हैं तो आप सिंपली कह दें आई सी आई टू आई, आप एग्री कर रहे हैं किसी के साथ, इस तरह आप ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल टूरिज्म का बताया, बिकेम द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट्स सिंस इट नॉट ओनली प्रोवाइडेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपसे जैसे ट्रैवल का टास्क 2 में ऐसे आ जाता है, टूरिज्म पे आ जाता है, तो आप वहां पे ऐड करें वो वर्ड बिकेम द कंसर्न, ये हाई गवर्नमेंट का इशू है। इससे ना क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है, हमारे पास अर्निंग्स जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया टू सिट ऑन द फेंस, आपसे कोई डिसीजन नहीं हो रहा तो आप तब ये यूज कर सकते हैं, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, आई रियली कांट चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स, बिटवीन दीज टू क्लोथ्स, इस तरह आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। अनएबल टू टेक डिसीजंस, टेकन अप का हमने कहा, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपसे हॉबीज के बारे में क्वेश्चन होता है तो आपने क्या करना है, आई हैव रिसेंटली टेकन अप, टेकन अप का मतलब होता है स्टार्ट करना, आई हैव रिसेंटली टेकन अप, जो आपकी हॉबी है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद बियॉन्ड एनी केवल, ये ओपनिंग फ्रेज है, ये फ्रेजेस 20 to 50 जो है ना, आपको सर भी लिखवा देंगे, मैं भी लिखवा दूंगी, बियॉन्ड एनी केवल। उसके बाद आपने टूरिज्म का बताया, टुडे हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली, कोई भी चीज जैसे टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, इस तरह का कोई हमारे पास टास्क 2 आ जाता है, टूरिज्म टुडे हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस। इन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, इट मींस डेवलप्ड नेशंस जो है, उन्होंने क्या देखा है कि लास्ट जो फ्यू इयर्स में ना फास्टेस्ट ग्रोथ वो है एरिया ऑफ सर्विस। सर्विस क्या, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विसेज में है, तो सर्विस के किस सेगमेंट में हो रही है। जैसे हम लोग राइटिंग टास्क 2 में लिखते हैं कि एक सेगमेंट, पहले आपने 2 रीजंस दी, फिर आपने कहा एक मेजर रीजन है, ठीक है, वो फॉर्मेट में लिखा होगा कि एक मेजर रीजन है जिसका सबको भी इतना नहीं पता, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री, कोई भी आपसे सर्विस के बारे में टॉपिक है आप वो सिंपली ऐड करें, although largely unrecognized as an entity in some of these countries is travel, अपने वो टॉपिक का नाम लिखते हैं। कहाँ कहाँ आप ये यूज कर सकते हैं, ट्रैवल में, टूरिज्म में, सर्विसेज के बारे में कोई आ जाता है, एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसे आ जाता है, कल्चरल वैल्यूज पे कोई ऐसे आ जाता है, आपने ये करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई आपसे पूछा आपकी जॉब कैसी जा रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स गुड, इट्स ग्रेट, इस तरह कहने की बजाय सो फार सो गुड, ये एक्सप्रेशन यूज कर लें। ये नेटिव एक्सप्रेशन है, सो फार सो गुड, ये आप कह रहे हैं कि हाँ अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। उसके बाद टू कीप योर नोज क्लीन और टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, ये मैंने आपको बताया। या हमने सेंटेंसेस लिखा कि आप कहीं घर से बाहर जाएं, आपकी फैमिली मेंबर्स मोस्टली कहते हैं कीप योर नोज क्लीन, इट मींस अपने आप को सेव रखना, आउट ऑफ ट्रबल, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये मैंने आपको टेक्नोलॉजी का बताया, विदाउट एनी आउट ऑफ डाउट इंफॉर्मेशन थेरीज, ये इसकी इनक्लोजिंग डिटेल है। यहाँ आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ आप कॉलन भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे EM डैशेस, ये बेसिकली EM डैश इसको बोलते हैं, आप ये एक्सप्लेन करके, जैसे इंफॉर्मेशन थ्योरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, किस किस चीज में आगे वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, DVD प्लेयर्स में, DNA में, फिजिक्स में, इसके अलावा सेंट्रल डेवलपमेंट है हर चीज की, जैसे कम्युनिकेशन है, हम डाटा इलेक्ट्रॉनिकली सेट कर सकते हैं। तो आप, मैंने कहा था अगर ये सारा ना भी याद रहे ना जो बोल्ड किया और इसको कर लें, information theory lies at the heart of everything and has therefore had a major impact on our lives, एक एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा। ये किस किस ऐसे में आपने ओपनिंग फ्रेज यूज करना है, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में, इस तरह के ऐसेज में आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजल वर्ब करवाए थे, कम इन हैंडी, कोई चीज आपके लिए बहुत यूजफुल है तो आप ये ना कहें कि यूजफुल है, आप ये एक्सप्रेशन यूज करें टू कम इन हैंडी, जैसे दैट बुक अबाउट फ्रेजल वर्ब्स came in handy when I started my English course, ये आप यूज कर लें। मल ओवर का हमने डिस्कस किया, टू थिंक डीपली एंड सीरियसली अबाउट समथिंग,
किसी चीज के बारे में आप डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है, तो आप वहां पे कहते हैं मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, वीकेंड स्पेंड कर रहा हूँ, मलिंग ओवर, एक डीपली थिंक कर रहे हैं आप कोई ऑप्शन चूज करने के लिए। फिर हमने डिस्कस किया एज चीप एज चिप्स। ये हमने क्या किया, एज चीप एज चिप्स का मतलब होता है जब मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट में विजिट कर रहे हैं, कोई स्ट्रीट मार्केट्स में, इसके अलावा कोई कैफे है वहां पे आपने विजिट किया, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं एज चीप एज चिप्स। वहां पे जो प्रोडक्ट्स थी ना उनकी क्वालिटी अच्छी थी लेकिन उनकी कॉस्ट कम थी, लो कॉस्ट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं एज चीप एंड चिप्स। फिर हमारे पास था प्राइड एंड जॉय। ये मैंने आपको बताया कि कोई काम करके आपको खुशी मिलती है तो आप उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज कर लें, आई फील प्राइड एंड जॉय टू डू दिस थिंग, इस तरह आई टेक अ ग्रेट प्लेजर टू डू दिस थिंग। उसके बाद अगर आप नहीं, आपको कोई हैप्पीनेस नहीं है, यस नो, इस तरह के एक्सप्रेशंस आपने स्पीकिंग में जैसे वेल इस तरह ना यूज करें, सिंपली आप अपनी टू द पॉइंट बात करें, टू टेक अ ग्रेट प्लेजर, आई डोंट टेक, इस तरह एग्री डिसएग्री में आपने एक सेंटेंस में बात कर जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राइटिंग में हमारे पास कुछ ट्रेंड होते हैं, वो बढ़ते जा रहे होते हैं, जैसे अनस्टॉपेबल, अनअवॉइडेबल, इनएक्सट्रेबल ट्रेंड। तो आपने वहां पे इनएक्सट्रेबल का भी मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली कोई चीज इंक्रीज हो रही है। बर्जानिंग का मैंने आपको बताया कि जैसे आपको कैफे में गए, प्राइवेट क्लिनिक्स है, यहाँ पे आप ये चीज मैं आपको बता दूं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, रेस्टोरेंट, कैफे, स्ट्रीट मार्केट्स, आप वहाँ पे वो यूज करें, आ न्यू वेव ऑफ रनिंग क्लब्स, a new wave of running hospitals या private clinics has burgeoned over the past few decades। आप इसको स्पीकिंग में भी अपने स्टार्ट पे यूज कर सकते हैं और ओपनिंग सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जब आपसे इन जो मैंने सेंटेंसेस बोले, जो टॉपिक्स बोले, आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, टू वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होता है जो मीनिंग चेंज कर देता है। टर्न डाउन, टर्न इन किया हमने, टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना, टर्न ऑन किसी चीज का स्विच ऑन करना, ठीक है, टर्न डाउन रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, आई टर्न डाउन इट, आई रिफ्यूज हिज ऑफर, तो आप ये यूज कर सकते हैं। सेट ऑफ का मैंने बताया, स्टार्ट को कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ये होता है किसी चीज को रेयरली कोई काम करना, आई रेयरली विजिट दिस मार्केट, यहाँ पे आप ये यूज करें वंस इन अ ब्लू मून, आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मोर ओवर फर्दर मोर का, ये आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं किसी चीज की डिटेल बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी को कहते हैं, ऑब्जेक्ट फेलियर होता है किसी चीज का एक्सट्रीम लेवल पे जाके ना आप होपलेस हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट फेलियर, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास है अस्पिशियस, आप पीक पे किसी चीज पे होपफुल होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, एक पॉजिटिव साइन आ रहा है आपके पास, अस्पिशियस मीटिंग। अबॉर्ट का मैंने आपको बताया, ये आर्मी में हम ज्यादा यूज करते हैं, मिशन अबॉर्ट। फिर हमारे पास वर्ड है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है किसी चीज को समराइज कर देना, सम अप कर देना, हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं इन अ नटशेल, ठीक है, किसी चीज को समराइज करके, टोटल करके, इकट्ठा करके उनको रख देना। फिर हमारे पास एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, इंटायर, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट पावर, ये आप यूज कर सकते हैं। बिक्वेस्ट का मतलब होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो आपके पास अपनी अपनी फैमिली से आती है, बिक्वेस्ट प्रॉपर्टी। बिरीव्ड फैमिलीज, ये इमरान खान ने वर्ड पहली दफा यूज किया था पाकिस्तान में कश्मीरियों के लिए, बिरीव्ड फैमिलीज, ठीक है, वो फैमिलीज जिनके बिलव्ड वंस, जैसे दोस्त हो सकता है, कोलीग हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बाकी मेंबर्स रहते हैं ना, जो उसकी डेथ की वजह से अपसेट होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बेरीव्ड फैमिलीज। फिर है हमारे पास ब्लैटेंट, ब्लैटेंट काफी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, ब्लैटेंट अटेम्प्ट, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड है, ब्लैटेंट अटेम्प्ट, ब्लैटेंट लाई, वाजिया, खुल्लम खुला जिसे कहते हैं गुस्ताखाना बिहेवियर, ब्लैटेंट लाई, वाजिया झूठ बोल रहा है, ब्लैटेंट अटेम्प्ट एक वाजिया अटेम्प्ट थी। उसके बाद ब्लाइट शेडो, ये मैंने आपको बताया कास्टिंग का ब्लाइट शेडो आप टास्क 2 में यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ब्लाइट का मतलब ज्यादातर तो हम लोग फ्रूट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, किसी चीज का खराब हो जाना, मुरझा जाना। बिकॉलिक, ये मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू विलेज लाइफ होता है, बिकॉलिक सीन्स के साथ हम लोग यूज करते हैं। अगर आपसे कोई ऐसी जगह के विजिट के बारे में पूछा जाए तो आप वहाँ पे जैसे पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है हमारे पास, आप ये कह सकते हैं बिकॉलिक सीन्स।
कैटलिस्ट का मैंने बताया कि ज्यादातर तो केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, लेकिन ये पर्सनालिटी के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। किसी का रोल ऐसा होता है कि वो एज अ लीडर दूसरों के माइंड को चेंज कर देता है, कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट, एक तो केमिकल रिएक्शंस में हो गया इसका, दूसरा वो। बाद है हमारे पास कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है क्लियर, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो सकती है, कैटेगोरिकल अश्योरेंस होता है, कैटेगोरिकल डिनायल हो सकता है। हमारे पास एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया आपने, और या पार, या ये काम करना है या ये काम करना है। एक वाजिया, एक जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्बिविलेंट का वर्ड। एम्बिविलेंट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स एट द सेम टाइम, लेकिन कैटेगोरिकल में हमारे पास एक वाजिया चीज आप कर रहे होते हैं। उसके हमारे पास कैथलिक है। कैथलिक का मैंने आपको बताया है, वैसे तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में हम यूज करते हैं, लेकिन इसको कैथलिक टेस्ट भी, डाइवर्सिफाइड टेस्ट, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। सेरिब्रल का मैंने आपको बताया, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, ब्रेनी, इस तरह के हम सेरिब्रल थिंकिंग जो होती है। अब मेंटल अप्रोच यूज कर रहे हैं, आप इमोशनल हो के ना, जैसे इमोशनल फीलिंग्स के साथ आप यूज करते हैं, तो वो आप करें। कॉलरिक का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। ओ सॉरी, ये तो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। मैम ये लास्ट 2 वर्ड दोबारा रिपीट कर दिया, कैथोलिक और कैथलिक आज हमने डिस्कस किया था, ये मैंने बताया कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में होता है हमारे पास कैथलिक चर्च, ठीक है। लेकिन जो इसका सेकंड मीनिंग है वो डाइवर्सिफाइड है, कम्प्रिहेंसिव, किसी चीज का एक्सटेंसिव होना। कैथलिक टेस्ट, डाइवर्सिफाइड टेस्ट है किसी के पास। सेरिब्रल का मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक ब्रेन एक्टिविटी है। आप इमोशनल जो फीलिंग्स के साथ, समटाइम हम लोग ना दिमाग से चीज नहीं सोच रहे होते, फीलिंग्स को प्रिफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग, अपनी जो मेंटल अप्रोच है ना, उसको प्रिफर करें, वो सेरिब्रल थिंकिंग होती है, सेरिब्रल अप्रोच आप यूज कर रहे होते हैं। हिज पोएट्री के साथ ये एडजेक्टिव है, आपने इसको हमेशा नाउन के साथ यूज करना है, आपने इसको अकेले यूज नहीं करना। जैसे पोएट्री है वो सेरिब्रल है। उसके बाद सेरिब्रल फिल्म्स है, ठीक है, उसने स्पेसिफिकली सोशल इश्यूज को डिस्कस किया है, इमोशनल फीलिंग्स पे वो इतना काम नहीं कर रहे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल होना, इंटेलिजेंट होना, ब्रेनी, लिटरेट, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो बताएं। आज मैंने आपसे इसलिए नहीं सुना, कुछ नए बच्चे थे तो मैंने कहा उनको। मैम जी जी। मैम इंटेलेक्चुअल का मीनिंग टेम्परेरी भी होता है, यानी कि चंद दिन के लिए टेम्परेरी आरजी मींस के नहीं, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल होता है पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सन, अच्छा ठीक है, कि ये बंदा जी। स्किलफुल है, अच्छा डेक्सटर्स, इस तरह। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल एक बंदे की स्किल्स के, स्पेसिफिकली ना दिमाग के साथ है। एक बंदा इंटेलिजेंट है, एक इंसान के पास जी स्पेसिफिक मैम। स्किल्स हैं, तो वो हम यूज करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है हमारे जी पास। ओके हो गया मैम। जी थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर? ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आप लोगों से भी सुनूंगी। बाकी आज बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने आपसे सारा दोबारा से एक्सप्लेन करके चीजें रिवाइज करवा दी आपको डिटेल में। आप लोग भी 1-2 दफा इसको देखिएगा, इंशाल्लाह फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स द टाइम अप। टाटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।